ਗਲੋਬਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਜੀਨੀਅਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 5th ਸੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। ਅਤੇ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 5th ਸੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ये मतलब पता नहीं लगा ये 12 साल कैसे निकल गए, इतना अच्छा टाइम था ये मेरा। मतलब कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं ना हमें जैसे कि स्कूल टाइम हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, तो ये सही में मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था जी। मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा पल मेरा और कहीं जाएगा। ये 12 साल में मैं जो भी हूँ मैं जहाँ तक गया हूँ, नेशनल्स खेला हूँ, अकेडमिक परफॉर्मेंस मेरी जो भी है, मैं स्टेज एक्टिविटीज़ करता हूँ, जो भी है सब मेरे को स्कूल की वजह से मिला है। इस स्कूल का स्टाफ, इस स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा है कि मतलब बच्चे सीख सकते हैं जो वो चाहें। मतलब इस स्कूल में बच्चों को लिमिट नहीं करा जाता, लिमिटलेस है यहाँ पे लर्निंग, एजुकेशन और ग्रोथ जी। लिमिट नहीं है ऐसी कोई, लिमिटलेस। ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 5th ਸੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਨਵੀਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ। ਇਹ 3 ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? हाँ जी, एजुकेशन मैटर्स। अगर आप स्कूल में आ रहे हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि आप पढ़ाई से बच के सिर्फ खेलते रहोगे। अच्छी परसेंटेज अलग बात है और अपना बेस्ट देना अलग बात है। अच्छी परसेंटेज आई इसका मतलब बहुत बढ़िया, पर अपना बेस्ट देने के बाद भी अच्छी परसेंटेज नहीं आ रही तो दिल छोड़ने वाली इसमें कोई बात नहीं होती। तो मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग मेरे को कभी असर नहीं पड़ा अपनी परसेंटेज या पोजीशन की वजह से, क्योंकि मेरे को पता है ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए हर एक आदमी की, हर एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि परसेंटेज एक क्राइटेरिया है बस जी, ये देखने का कि हमें और कितनी मेहनत की ज़रूरत है अच्छी परसेंटेज या अच्छी पढ़ाई या अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਛਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੇਲ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੇਲ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਵੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੁਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
पवेगा? मतलब मैंने सर ये कहीं पढ़ा है, मतलब सम डू गुड इन स्कूल बट सम डू गुड इन लाइफ। जी। जो लड़के आज स्कूल में फेल हो रहे हैं, जिनके रिपोर्ट कार्ड के नीचे लाल लाइन है, ये जरूरी नहीं है कि वो आगे जाके अच्छी नौकरी नहीं कर सकते। यू नेवर नो कब कहाँ कौन शाइन कर जाए। जी। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो फेलियर था। बिल गेट्स को नॉलेज पूरी थी जी, पर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थी। तो मतलब बिल गेट्स को आज पूरी दुनिया जानती है। तो मतलब रिपोर्ट कार्ड तो उसके पास था ही नहीं कॉलेज का, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, कोई परसेंटेज नहीं, फिर भी आज वो सबसे अमीर आदमी में से एक है पूरी दुनिया में। तो मतलब अच्छी परसेंटेज से जरूर, हाँ, फ्यूचर सिक्योर है, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, पर अच्छी नौकरी के साथ साथ, अच्छी कमाई के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बंदा खुश कितना है। जी। सिर्फ पैसा खुशी तो नहीं दे सकता ना सर हमें। मतलब अगर बंदा कम परसेंटेज लाके भी लाइफ में अच्छा करे और खुश है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जी, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है ना सर। ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂ ਅਮਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਭਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ कॉन्फिडेंस ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ? स्टेज एक्टिविटीज़ एक सबसे बड़ा जो हमें योगदान देती है हमारी लाइफ में, वो है कि वो हमें कॉन्फिडेंस देती है दूसरों के सामने बोलने का। आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपको नॉलेज है, पर अगर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे दुनिया के सामने जाके, तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मतलब कि अगर ठीक है आपके 90% आ गए रिपोर्ट कार्ड में, आपके मम्मी पापा खुश हैं, पर इंटरव्यू में जाके, आईएएस का इंटरव्यू, अच्छी परसेंटेज वाला कोशिश तो करता ही, आईएएस काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है। अब आईएएस बनने के लिए इंटरव्यू तो फेस करना ही होगा। अब इंटरव्यू में अगर बंदे को बोलना नहीं आ रहा तो बंदा करेगा क्या? तो स्टेज एक्टिविटीज से बोलने का कॉन्फिडेंस आता है, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस आता है, जो हमारे स्कूल में लगभग हर बच्चे को सिखाया जाता है। स्टेज एक्टिविटीज़ मतलब जो बच्चा अच्छा बन गया एक बार, उसको हटा देते हैं, फिर जो बुरा है उसको नीचे से ऊपर लेकर आते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही था। मतलब मैं 4th 5th में कुछ खास नहीं था स्टेज एक्टिविटीज़ में जी। फिर मेरे टीचर्स ने मेरे को धीरे धीरे स्पीचेस देना शुरू करा। मतलब असेंबली में पहले मैंने बोलना शुरू करा, फिर मेरे को स्पीचेस मिली हाउस कॉम्पिटिशन्स के लिए, फिर धीरे धीरे मैं इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट, यहाँ तक मैं पब्लिक स्पीकिंग के लेवल तक पहुँचा हूँ। तो मतलब पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग ना, बिल्कुल, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग ना करता तो शायद आज मेरे को यहाँ बैठने का मौका ही नहीं मिलता आपके साथ। तो मतलब रिपोर्ट कार्ड ठीक है, पर पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज एक्टिविटीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। दूसरी गल आती है कि असी दूसरा हुण पहलू लेने आ, तुसीं इस दी स्टेज कॉन्फिडेंस की गल की कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 5th ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੂਲ ਮਸੂਰੀ ਦੀ ਜੋ 2020 ਵਾਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, 19-20 ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ एक्सपीरियंस ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? वाइस कैप्टन बन के तो सर मेरे को सबसे बड़ी बात ये पता लगी है कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास, प्रेशर उतना ही आ जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें देखना होता है कि अगर हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ओहदा हमें सौंपा है तो कुछ देख कर ही सौंपा है। तो मतलब मेरे को इतना ज़रूर पता लग गया कि अगर ज़िंदगी में कहीं आगे जाना है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। किसी ऊंची पोस्ट पर जाना है तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना, अगर मेरे को वाइस कैप्टन ना बनाता तो शायद मेरे को कभी एक्सपीरियंस ना मिलता, क्योंकि 400-500 बच्चों के स्कूल में उन सबको कमांड देना, उन सबको डिसिप्लिन में रखना, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ वाली बात है सारी। मतलब बच्चे आपकी बात माने, तो मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ का पता लगता है इससे। अगर मेरे से ऊपर भी तो था एक,
स्कूल कैप्टन, मैं तो वाइस कैप्टन था, तो मतलब उसमें मेरे से कुछ अच्छा होगा तभी तो उसको वो दिया है वो पोस्ट। तो मैंने ये सीखा है कि अगर आपको ऊंची पोस्ट मिली है, ऊंचा ओहदा दिया है, तो मतलब उसमें 3 चीजें आ गई। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक टीचर का विश्वास जो उन्होंने हम पर ट्रस्ट रखा है कि चलो ये हमारे स्कूल को अच्छा करेगा, ये डिसिप्लिन रखेगा। 2 चीजें हो गई। और तीसरी चीज जो थी मेरी, वो मैं कहना चाहूंगा लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं इससे जी। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਮਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਰਾਂ ਉਹੀ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਇਸ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਪ ਦੇਖਦੇ? सर मोटिवेशन तो अपनी जगह है, मतलब मोटिवेशन मिली तो ही मैं इतना ऊपर गया जी। पर उससे ज़्यादा बड़ी बात जो जिसकी वजह से मैं आज इतना ऊपर पहुंचा नेशनल्स लेवल तक, वो ये था कि मेरे को खींचने वाले बहुत थे जी। जो नीचे खींचने वाले लोग होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि आपके अंदर फिर वो एक आग आती है, एक जज्बा आता है कि नहीं, इसने मेरे को नीचा कैसे दिखाया, इसको गलत प्रूफ करने के लिए मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। वाह जी वाह, बहुत। तो मतलब मेरे कोच तो थे ही, मतलब उनका तो हमेशा सपोर्ट रहा मेरे को। तो मैंने बॉल खेलना शुरू क्यों करा था, क्योंकि मेरे को हाइट बढ़ानी थी। मैं काफ़ी छोटा था, मेरे को याद है, मतलब एवरेज हाइट से नीचे था मैं क्लास 7th 8th तक। तो मेरे को अपनी हाइट बढ़ानी थी, बास्केटबॉल शुरू करा था। तो सिर्फ हाइट बढ़ाने के चक्कर में मेरे को इतना इंटरेस्ट आ गया, इतना मोटिवेट करा मेरे को मेरे कोच ने कि मैं सबसे पहले इंटर हाउस टीम में हुआ। इंटर हाउस टीम में फिर मेरे को याद है ऑपोजिशन ने एक बार हमें मतलब मेरे को नीचा दिखाया, तो मेरे अंदर वो हो गया कि नहीं, अब इंटर हाउस टीम है तो इससे अच्छा बनूंगा और इंटर स्कूल टीम में जाऊंगा। इंटर स्कूल टीम में भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ, मतलब मेरे जो टीममेट्स थे, वो होता ही है ना सर, कंपटीशन में एक दूसरे को बेटर दिखाना होता है। तो जो मेरे से बेटर बनना चाहते थे उन्होंने मेरे को नीचे दिखाया, मेरे अंदर फिर और मोटिवेशन मिली इस सब से मेरे को। तो फिर मैं कैप्टन बना। फिर उसके बाद मेरी गेम देख के बाहर लोगों ने, फिर मैं ऐसे सर ऊंचा जाता गया। तो मतलब एक तो होगी पॉजिटिव मोटिवेशन, तो पर मतलब जैसे सचिन ने कहा है कि मतलब अगर लोग तुम पर पत्थर फेंक रहे हैं, इफ पीपल आर थ्रोइंग स्टोन ऑन यू, जस्ट कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स। वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब सर कि तुम्हें कोई नीचा खींचे, उसको बुरा कभी मत सोचो, उसको एक मोटिवेशन की तरह लो कि नहीं, इसने मेरे को नीचे दिखाया, मैं इससे अच्छा करूंगा और फिर इसको नीचा दिखाऊंगा। जी जी जी। और मन में पर कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि इसको नीचा दिखाऊंगा, पर मतलब अपने लिए करो जो करना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰत्येक पतंग ने एक ना एक दिन मट्टी होना है, पर मट्टी होने से पहले आसमां को छूना है। इस जगह ते जिन्ने भी आए आ, किसी का ये नहीं पता कि कदों किसी ना की वापर जाना है, पर इस दुनिया ते आया का फायदा तां ही है जेकर जान तो बाद साडियां एग्जैम्पल्स लोकां नूं दित्तियां जाण। कुछ लोग ऐसे हुंदे आ जो जिउंदे ही मरियां वर्गे हुंदे आ, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो मर के भी सदा जिउंदे रहिंदे आ, जिन्हां ने कुछ कीता हुंदा है, जिन्हां कोई नाम बनाया हुंदा है, जिन्हां कुछ कमाया हुंदा है, खट्टिया हुंदा है। और दुनिया दे विच जे जिउणा है तो इस तरह जीओ कि लोग तुहाडी उदाहरण देण। और मैनूं लगदा है कि अमनवीर तुसीं उस राह ते चल रहे हो। एक सफ़र तुहाडा बचपन तो जवानी तक दा पूरा हो गया, क्योंकि जिस दे विच तुसीं इस वेले जिहड़ा है वो स्कूलिंग पूरी कर लई है। हुण स्कूलिंग पूरी होण तो बाद अगे किस तरह सोचते हो कि अगले जिहड़े लाइफ दे विच कॉलेज लाइफ है, जिस जगह ते जाके प्रोफैशनलिस्ट भी बनना है, कोई प्रोफैशन भी चुनना है? क्योंकि एक आम गाना चलदा हुंदा सी,
ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, अगली प्लानिंग की है? सर जैसे ये 12 साल मेरे स्कूल में इतने अच्छे गए, इतने सुहाने गए, मतलब सब करा मैंने, मस्ती अपनी जगह, सीखा अपनी जगह। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ जो कॉलेज के 3 साल हैं बहुत क्रूशियल ईयर्स होते हैं सबके, और मतलब स्कूल से मैंने यही सीखा कि मतलब जो करना है अपना बेस्ट दो। तो मतलब मैं यही चाहता हूँ कि मैं कॉलेज में जाऊँ, अपना बेस्ट दूँ अच्छी चीज़ों में। कहने को तो गुंडा भी बंदा बेस्ट बन सकता है, पर नहीं, वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी साइड चुनता है। बर्बादी भी अपने हाथ में, सफलता भी अपने हाथ में। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि बेस्ट बन के कॉलेज से बाहर निकलूं, ताकि स्कूल में तो नाम है ही, तो कॉलेज में भी याद करें कि ये एक लड़का था जो GNFCS से आया था, इसने हमारे कॉलेज में जो करा वो आज तक कोई नहीं कर पाया। हाँ, वाह, बहुत वधिया जी कि असी वो सब कुछ करना है। तो ये वास्ते वैसे एक चीज़ है कि हर बंदे नूं, जिस तरह तुसी कहा कि सफलता साडे अपने हत्थ हुंदी है, किसी दूसरे दे हत्थ नहीं। सब तो वड्डी गल यही है, वो लोग जिंदगी दे विच मार खा जाते हैं जिहड़े लोग दूसरियां ते सफलता लई देखते हैं। क्योंकि मैं बहुत वार ये गल कहना, चंगे काम करो, पर चंगे काम करदे ये आस ना रखो कि लोग तुहानूं एप्रीशिएट करन कि तुसीं चंगा काम कीता। जदों तुहानूं पता होए मैं चंगा काम कीता, अपने आप नूं आपे ही एप्रीशिएट कर लो, वैल डन। तो इस तरह ये तुसीं जिहड़ा अपना इहदा कोई ना कोई मैं ये कह लवां कि रूट मैप बनाया होवेगा कि हुण इस तो अगे आ करांगा, इस तो बाद इस लाइन ते चलांगा, 1-2 ऑप्शनस भी विच रखियां होणगियां। वो किस तरह का जिहड़ा है वो रोड मैप है जिहड़ा वो तुसीं अगे दा लैके चलण दी सोच रहे हो? सर मैंने तो मतलब अपने एम के बारे में ना सर, हाँ, तो मतलब सर मैंने डिसाइड करा कि जिस चीज़ में मैं सबसे अच्छा हूँ मैं उसको सबसे आगे लेके चलूँगा, और जिस चीज़ में मैं थोड़ा कम अच्छा हूँ उसको मैं उससे थोड़ा पीछे लेके चलूँगा, ताकि अगर जो मैं चाहता हूँ वो ना बन पाए तो कम से कम वो तो कर लूँ। जैसे सर मेरे को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मतलब मेरा एम है कि मैं आगे जाके एस्ट्रोफिजिक्स परस्यू कर पाऊँ। और अगर मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाता तो मेरे पास कंप्यूटर्स भी है सर जी। कंप्यूटर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं मतलब इंटरेस्ट बहुत है मेरे को उसमें, फिजिक्स से कम है पर इतना ज़रूर है कि मतलब मैं दिल लगा के उसमें भी कुछ कर ही सकता हूँ। कुछ क्या मतलब सर बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। वाकया ही जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 5th ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਸਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਨਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਏਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈसेज देना चाहोगे अपने तो जूनियर्स में? मैं अपने जूनियर्स को तो सर यही मैसेज दूंगा कि मतलब फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सिखाती है। इतना टीचर नहीं सिखाएगा तो तुम्हारे माँ बाप नहीं सिखाएंगे जितना तुम्हें तुम्हारा फेलियर सिखाएगा। अब गिव अप नहीं करना होता है ऐसे में जी। तुम फेल हो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हें और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर तुम कहीं फेल हो रहे हो, इसको पॉजिटिव तरीके में लो कि अब मैं और काम करूंगा। अगर हार मान गए तो जैसा कि कहते हैं सर, पिक्चरों में भी कहते हैं कि लूजर्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। बनना है तो विनर बनो, लूजर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, क्योंकि लोग चढ़ते सूर्य को सलाम करते हैं, डूबते सूर्य को कोई नहीं करता। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। पर देखा जाए तो डूबते सूरज में भी बहुत तपिश होती है, पर वही डूबता हुआ सूरज भी अगले दिन उठता है। इसका ये मतलब नहीं अगर तुम फेल होगे तो नीचे ही रहोगे, उठने का चांस सबको मिलता है, वो चांस लेना है बस।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਨਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬੈਲ ਦਾ ਜੋ ਬਟਨ ਕੋਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं आपके चैनल में हूँ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਨ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ RJ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।